Good morning, boys. Today we will discuss about the two important 6 marks questions from the chapter Demand. The first question that we will discuss is question number 1 that states that how does law of demand operates? That's the first question. Or version, that is very simple. The question will be different but the answer will be same. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा but you will get the same answer of this question only. That is, why does demand curve slope downward from left to right? Let me tell you the answer here. 3 important points in this question. That is, you all know that demand curve, how it looks. It looks is a downward sloping curve from left to right. I have told you that please draw a straight line demand curve here. Two axes, x and y. This side it is the quantity and this side it is the price. So this is how a demand curve looks, or you can easily say it while you are making a curve here. So demand curve actually looks like this, D and D, x axis and y axis. You all remember, I guess, that it's a price here, price certain share with the quantity. Suppose price is reduced from P to P1, quantity get increased from Q to Q1, and the same vice versa scenario, price rises from P to P2, quantity falls from Q to Q1 here. So that's the very simple thing here. Now, why this demand curve slope downward from left to right? First point regarding the slope of the demand curve. First point says here, it is law of diminishing marginal utility. Again I am repeating here. पहला point क्या है? First point is law of diminishing marginal utility. What's the second point here? The second point says is the substitution effect. substitution, substitution effect. Third point, it says about the income effect. So there are the 3 points here. Not 3 points, actually there are 5 to 6 points. Different books suggest different type of points, but primarily there are 3 basic points here. What is here? Number 1 is the law of diminishing marginal utility. Number 2, it talks about the substitution effect. Number 3 talks about the income effect. एक एक के बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे. I guess all of you remember with the word utility. आप सबको ये word utility याद होगा. What is utility here? आसान भाषा में utility कहते हैं. देखिए, look at this word utility. What is the basic meaning of this word utility here? The basic meaning of this word utility says that it is the want satisfying power of a commodity. किसी commodity का want satisfy करने का जो power होता है, हम लोग उस power का नाम देते हैं utility. Now what is marginal utility here? On a very simple note, we can say that what is marginal utility? It is the addition to the total utility by the consumption of an additional unit of a commodity. एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन होने से आपका टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ता है? प्लीज लुक एट दिस चार्ट हियर. आई एम मेकिंग ए चार्ट हियर विद द प्राइस हियर is with the utility here, marginal utility, and this side I am making here total utility. We all know that the unit of utility is utility. Utility का unit क्या है?
utils है. Price is 10 rupees. It is fixed. If we take about the consumer equilibrium concept here. Now suppose मैं मान लेता हूँ कि 10 रुपये का कैडबेरी खाया, पहला कैडबेरी खाया, मेरे को सेटिस्फेक्शन आ गया, मैं मान लेता हूँ 50 यूटिल का. अच्छा, अगर आप तुरंत एक और कैडबेरी खाते हैं, सपोज ऑन ए सेम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू हैड वन मोर कैडबेरी, व्हाट विल, क्या आपको और अच्छा लगेगा? पहला कैडबेरी आपको जितना अच्छा लगा है, क्या दूसरा कैडबेरी आपको उतना ही अच्छा लगेगा कि उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर का स्वभाव बोलिए, कंज्यूमर का भाव बोलिए. नॉर्मली मैं ये मान लेता हूं कि जैसे ही आप दूसरा यूनिट कंजम्पशन करेंगे, आपका जो यूटिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल. याद करिए क्लास 11, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता रहेगा? डिमिनिश करता रहेगा, गिरता रहेगा. लाइक पहला कैडबेरी खाए 10 रुपये का, 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हुआ. दूसरा खाए, ये यूटिलिटी भी फॉल होके मैं मान लेता हूँ 30 आ गया. तीसरा कैडबेरी के बाद ये 30 से गिर के आ गया आपका 10. तो टोटल यूटिलिटी कैसे हुआ? पहला कैडबेरी पे 50, दूसरे पे 50 और 30 जोड़ के होता है 80, तीसरे पे 80 और 10 जोड़ के होता है 90. सो दैट द सिंपल सिनारियो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ऑल अबाउट. क्लियर कर पाए बात को बढ़िया से एकदम? तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट as the quantity increases, the marginal utility of a commodity continuously falls. As the quantity increases, marginal utility of the commodity continuously falls. That's the simple scenario regarding the law of diminishing marginal utility. Clear my words here? What is the law of diminishing marginal utility all about? Marginal utility घटते रहता है जैसे जैसे एक एक करके आप कंजम्पशन को बढ़ाते रहेंगे. अच्छा, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आप सभी को. सर, इससे मेरा डाउनवर्ड पे क्या असर पड़ा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये लॉ आपका डिमांड कर्व को ऊपर से नीचे आने में हेल्प करता है. द लॉ हेल्प्स आवर डिमांड कर्व फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इससे ज़्यादा डिटेल्स क्लास 12 के करिकुलम में नहीं है. वी कैन से दैट अप टू क्लास 12 करिकुलम वी आर हैविंग अप टू द दिस मच ऑफ द कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? देखिए, डिमांड कर्व डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट आने का दूसरा कंडीशन आपका है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंटेंट्स ऑल अबाउट? मैं एक आसान भाषा में बात करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है. देखिए, अच्छा, आपको मैंने पहले बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है. व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑल अबाउट? क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दो गुड्स जब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं तो मैं उन लोगों को सब्स्टिट्यूट, लाइक मैं एग्जांपल लिया था कि चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉन्सेप्ट है? टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स टू वन अनदर. सपोज मैं दुकान जाके मानता हूं कि चाय अभी 3 रुपया करके पर ग्लास है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ टी? प्राइस ऑफ टी इज ₹3 पर ग्लास. कॉन्सेप्चुअली मैं मान लेता हूं अभी कॉफी का दाम कितना है? 5 रुपया पर ग्लास है. सपोज द प्राइस ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 3 to 4. द प्राइस ऑफ कॉफी रिमेन्स द सेम, 5 ओनली. अच्छा, हुआ क्या यहां पे? देखिए, we all know that as the price of tea falls, the demand for tea will rise, which substantially the demand for coffee will fall. ये तो substitute goods का रूल है, ये हम सब जानते हैं. हमें इसके बारे में बात नहीं करना है. हमें बात करना है, पहले देखिए चाय और कॉफ़ी का जो प्राइस है उसका डिफरेंस कितना है? 2 रुपया का है. अभी जो चाय और कॉफ़ी का प्राइस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का जो प्राइस है यहाँ पे 3 रुपया 5 रुपया था. तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव प्राइस गैप है वो कितने का है? 2 रुपया का है. नाउ अभी चाय का दाम बढ़ के 3 से कितना हो गया है? 4 हो गया है. अभी चाय और कॉफ़ी का रिलेटिव गैप कितना है? 2 नहीं है. अभी चाय और कॉफ़ी का रिलेटिव गैप कितना है? 1 है.
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेटिव प्राइस, RELATIVE, relative price. What's the word important here? The word important here is the relative price. चाय का दाम बढ़ने से कॉफी का डिमांड घट गया। चाय का दाम बढ़ने से, I am telling something fishy here. Wait. The price of tea rises, the demand falls. The substantially demand of coffee rises. चाय का दाम बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ गया। चाय का दाम, द प्राइस ऑफ टी राइजेस, द डिमांड फॉर कॉफी राइजेस। ये कैसे हो गया? ये रूल तो हमें पता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे देखिए, पहले चाय और कॉफी का जो रिलेटिव प्राइस था वो कितना था? 2 रुपया था। सॉरी, अभी चाय और कॉफी का रिलेटिव प्राइस कितना है? 1 रुपया है। चाय और कॉफी का रिलेटिव प्राइस फॉल होने के कारण कॉफी का डिमांड जो है क्या हो गया है? बढ़ गया है। As the relative price of tea and coffee falls from 2 to 1, so the demand for coffee rises. We call this effect as the substitution effect. In this concept, relative price is the most important thing. Got my point here? What is substitution effect? Now let's talk about the income effect. If we are talking about income effect, the most important concept here is the real income. मैं एक छोटा सा कहानी में आपको बात करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आप महीने में 1000 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं महीने में? 1000 रुपया कमाते हैं। जब महीने में 1000 रुपया कमाते हैं तो महीने में 100 रुपया का मैं मान लेता हूँ आप लोग मिठाई खाते होंगे। भाई मिठाई सब पसंद करते हैं, आप लोग भी मिठाई खाते हैं। 1000 रुपया जब महीने में कमाते हैं तो 100 रुपया को मैं मान लिया आप क्या करते हैं? 100 रुपीज़ का स्वीट्स कंजम्पशन करते हैं। सडनली द प्राइस ऑफ स्वीट्स फॉल्स। 100 रुपया से गिर के हो गया 80 रुपया। अभी स्वीट्स का दाम कितना हो गया? 100 रुपया से गिर के 80 रुपया। अल्टीमेटली जब 100 रुपया था तो आपका महीने में 900 रुपया बचता था। अभी 920 रुपया बच रहा है। मिठाई का दाम गिरने से आप पहले 900 रुपया बचता था, 100 से 80 होने से अभी 920 बच रहा है आपका। एज देयर इज मोर इनकम, देखिए पहले आपका जेब में बचता था 900, अब जेब में बच रहा है 920। तो यहाँ पे ये वर्ड बोलेंगे कि एज द प्राइस ऑफ स्वीट्स फॉल्स द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? जैसे जैसे कंज्यूमर का दाम गिरता जा रहा है वैसे वैसे उसका रियल इनकम, ये वर्ड को मैं क्या लिया हूँ यहाँ पर? वर्ड है मेरा रियल इनकम। रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। ये रियल इनकम बढ़ने के कारण, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर डिमांड भी ज़्यादा करता है। तो यही 3 मुख्य कारण है और वी कैन से दैट दिस 3 आर द prime reasons that demand curve slope downward from left to right. Clear my words here? Next important question from demand, we will be talking about the exceptions to the law of demand. Let me give the headings here. The heading is showing here exception, EXCEPTIONS, exceptions to the law of demand. That's the next topic we will be discussing. It's also one of the most important topic that demand is to cover. I have told you that in the very beginning of this video that we will be discussing 2 questions in this video. First one I discuss is the why demand curve slope downward from left to right. The second one I am discussing is the exceptions to the law of demand. अच्छा बेटा, लॉ ऑफ डिमांड का बात आती है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, मैं इसको लिखता हूं कैटरीज
पैरिबस। बेटा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट का दूसरा नाम ये भी होता है कैटरिस पैरिबस। नाउ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, व्हाट इज मीन दैट? इट मीन्स दैट कि प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन डिमांड नहीं घटेगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमांड भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। या तो देखा जाए प्राइस घटेगा, डिमांड भी साथ साथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड जिस तरह से होता है ठीक उसका उल्टा काम करेगा। जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड होता है उसका ठीक उल्टा काम करेगा, मीन्स द कंप्लीट रिवर्स विल वर्क। सो दैट्स द सिंपल सिनेरियो रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड ऑल अबाउट। क्लियर कर पाए आपको बात को एकदम बढ़िया से? सो दैट्स द सिंपल सिनेरियो ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ लेट मी टेल यू द बेसिक थिंग। मैं यहां पर सबसे पहले बात करूंगा पहला एक्सेप्शन के बारे में। पहला एक्सेप्शन मेरा क्या है? गिवन गुड्स। व्हाट द फर्स्ट एक्सेप्शन है? गिवन गुड्स। बेटा आप सबने इसके बारे में जिंदगी में एक दो बार तो सुना ही होगा। इसको समझ में आए चाहे ना आए, किसी को कुछ पता हो या ना हो, हर लोग ये गिवन गुड्स शब्द का इस्तेमाल बड़ा अच्छे से करते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये गिवन गुड्स होता क्या है। इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें, द स्टोरी स्टार्ट्स 18th सेंचुरी। इंग्लैंड वॉज फोर्सिंग इट्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड में उस समय क्या हो रहा था? उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। उस समय सर रॉबर्ट गिफन लेबर इकोनॉमिक्स पे एक रिसर्च कर रहे थे। वो इंग्लैंड के एक इंडस्ट्री के बाहर ही खड़े हुए थे। वो ये देखते थे कि टिफिन के दौरान, ड्यूरिंग द टिफिन ब्रेक, द लेबरर्स यूज्ड टू कंज्यूम मीट एंड मटन। क्या कंज्यूम करते थे? लेबरर यूज्ड टू कंज्यूम मीट एंड मटन। एज सडनली, मैं यहां पे ये वर्ड को मेंशन करता हूं, लेबर कंज्यूम क्या करते थे? मीट कंज्यूम करते थे और मटन कंज्यूम करते थे। मैंने दोनों शब्द को यहां क्या किया? लिख दिया है। लेबर यहां पे कंज्यूम करते थे मीट और मटन। सडनली देखा गया ये कि लेबर कंज्यूम करते थे ब्रेड और मटन। सडनली ये देखा गया कि ब्रेड का प्राइस जो है क्या हो गया? बढ़ गया। मैं मान लेता हूं कि ब्रेड और मटन दोनों मिला के लेबर का कंजम्पशन कॉस्ट होता था 10 रुपया। सडनली इट हैज बीन सीन दैट द प्राइस ऑफ ब्रेड हैज राइजेस। ब्रेड का दाम बढ़ गया। तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ब्रेड का दाम जब बढ़ गया तो ब्रेड का डिमांड क्या हो जाना चाहिए? घट जाना चाहिए। ब्रेड का दाम अगर बढ़ गया तो द डिमांड ऑफ ब्रेड शुड फॉल। यही होना चाहिए ना? यहां पे नहीं हुआ। इनफैक्ट लेबरों ने ब्रेड का दाम बढ़ने से मैं एग्जाम्पल को थोड़ा दूसरे ढंग से बोलता हूं। रॉबर्ट गिफन ने देखा कि लेबर यूज्ड टू कंज्यूम ब्रेड और मीट, बट सडनली व्हाट हैपेंस? द प्राइस ऑफ ब्रेड हैज फॉलन डाउन। ब्रेड का दाम क्या हो गया? घट गया। मैं मान लेता हूं कि ब्रेड और मीट मिला के 10 रुपया का होता था उनका। ब्रेड का दाम फॉल होने से लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि ब्रेड का डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। एज द प्राइस ऑफ ब्रेड हैज फॉलन डाउन, द डिमांड फॉर ब्रेड शुड राइज। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उस समय इस कंडीशन पे, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, द लेबरर्स थॉट टू हैव एक्स्ट्रा मीट इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा ब्रेड। लेबरर्स थॉट टू हैव एक्स्ट्रा मीट इन प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा ब्रेड। मतलब ब्रेड का दाम गिरने से ब्रेड का डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन लेबरों ने क्या किया? उस पैसे से ब्रेड ना खरीद के उस पैसे से उन्होंने मीट का ज्यादा डिमांड करना पसंद किया। So the what condition arises here? The condition arises here is that bread यहाँ पे क्या हो गया है? Bread has
in the given goods here. क्यों ब्रेड को गिवन गुड्स बोला गया उस समय? बिकॉज दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिडंट सपोर्टेड ब्रेड. ब्रेड का लॉ ऑफ डिमांड यहां पर क्या हो गया है? काम नहीं किया है. क्लियर माई पॉइंट हियर ऑल ऑफ यू? आप बोलोगे सर तो व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ ए गिवन गुड्स? ब्रेड क्या गिवन गुड्स का एग्जाम्पल है? नहीं, एकदम नहीं है. गिवन गुड्स का डेफिनेशन क्या है? गिवन गुड्स आर ऑल इंफेरियर गुड्स. यस, आई रिमेंबर द वर्ड इंफेरियर है. इंफेरियर वर्ड को याद मैंने क्या किया है यहाँ पर? इंफेरियर क्या था कि ये वो गुड्स है जिस पे हम अपने इनकम का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्चा करते हैं. इंफेरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच वी स्पेंड द मैक्सिमम या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर इनकम. सारा इंफेरियर गुड्स गिवन नहीं होता है, लेकिन सारा गिवन गुड्स इंफेरियर गुड्स होता है. सारा इंफेरियर गिवन नहीं होता है, लेकिन सारा गिवन गुड्स इंफेरियर होता है. तो व्हाट इज गिवन गुड्स हियर? गिवन गुड्स आर दोज इंफेरियर गुड्स इन विच द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट. What is given goods here? Given goods are those inferior goods in which the law of demand does not operate. Given goods वो goods inferior goods होते हैं जिन पे law of demand काम नहीं करते हैं. So that's the basic thing regarding the given goods all about. Clear to all of you the concept of given goods? Industrial revolution, bread, meat. अचानक देखा गया ब्रेड का दाम गिर गया तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ब्रेड का डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसके जगह पे मीट का डिमांड बढ़ गया. तो सर रॉबर्ट गिफन बोले कि ये मेरा ब्रेड जो हो गया वो क्या हो गया? मेरा गिफन गुड्स. क्लियर माई वर्ड्स हियर? नाउ नंबर टू पॉइंट इट इज सेइंग इज ऑल अबाउट द स्नॉब अपील. इट्स सेइंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील. Now, what is article of snob appeal all about? मैं आपको कुछ बता देता हूं यहां पे, सुनिए. मेरा एग्जाम्पल है यहां पर आईफोन. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा. दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड है. लेकिन क्या आईफोन के कंडीशन में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है. आईफोन का प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाता है डिमांड में कभी कमी तो दिखाई नहीं है. कंटिन्यूसली डिमांड भी क्या होता गया है? यहाँ पर बढ़ता चला गया है. क्यों? ऐसा क्या है इसमें? बेटा ये आईफोन जरूरत से भी ज़्यादा ये एक स्टेटस सिंबल माना जाता है. जरूरत से भी ज़्यादा ये क्या है आपका? एक इट इज़ अ स्टेटस सिंबल टू द सोसाइटी. इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि उन चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है जो स्टेटस दिखाता है. ये स्टेटस सिंबल शादी ब्याह में आपको सोने का भी दिखेगा, गोल्ड का भी. ये कंडीशन होता है कि देयर आर सम थिंग्स जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि द स्टेटस, इट शोज द स्टेटस ऑफ द. इस स्नॉब अपील को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कंस्पिशियस कंजम्पशन. नाम क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग द नेम हेयर कंस्पिशियस, CONSUMPTION, कंस्पिशियस कंजम्पशन. आर्टिकल ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन या गुड्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन. नाउ व्हाट इज गुड्स ऑफ कंस्पिशियस कंजम्पशन है? इसका ये मतलब ये कि कुछ गुड्स होते हैं जो अल्टीमेटली आपका नेसेसिटी नहीं होता है, वो एक स्टेटस सिंबल को शो करता है, which primarily shows the status symbol of a person. So in that particular context we can say that it is the article of snob appeal, that is goods of conspicuous consumption. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते हैं. इन चीज़ों का, आईफोन हो गया, गोल्ड हो गया, इन चीज़ों का दाम बढ़ते रहेगा तो पर भी आपका डिमांड जो है क्या होगा? वो भी बढ़ता रहेगा. लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट द snob appeal या conspicuous consumption. Let me talk about the third one. The third one is very simple. It is expectation regarding future prices. What is showing here? It is showing very simple, that is expectation regarding
फ्यूचर प्राइसेस। मैं बड़ा आसान ढंग से इसके बारे में बात करता हूं। आपको अगर कहीं पे गलती से पता चला, आपको अगर कहीं पे गलती से पता चला कि सपोज आप बाजार गए, क्या खरीदने भाई? आलू खरीदने गए, POTATOES, ठीक है। कल था 25 रुपया पर किलो, आज आप बाजार जाके देखते हो इट इज 30 रुपीज पर किलो। कितना दाम है आलू का भाई आज? 30 रुपया पर किलो। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? एज द प्राइस राइजेस डिमांड शुड फॉल। यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है डिमांड गिरना चाहिए। लेकिन सपोज मान लीजिए उसी समय दुकानदार आपको बोलते हैं कि भैया आज तो 25, आज तो 30 है, कल आइएगा 50 बेचूंगा। अब बताइए क्या आप डिमांड कम करके आओगे? नहीं। द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, आप डिमांड ज़्यादा करके आओगे। तो क्या यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ओनली बिकॉज कि आपको फ्यूचर प्राइस के बारे में एक अंदाजा लग गया है। क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया? लॉ ऑफ डिमांड इसलिए काम नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में, फ्यूचर में इसका प्राइस जो है बढ़ सकता है। सो दैट्स द सिंपल थिंग रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर आपको लगे कि भविष्य में दाम बढ़ सकता है तो अभी दाम भले थोड़ा सा ही बढ़ा हो, लेकिन आप डिमांड को कम नहीं करोगे, बल्कि उसके जगह पे आप डिमांड को और ज़्यादा करने वाले हो। सो दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट द थर्ड वन। फोर्थ वन, इट इज़ वेरी इजियर वन, आसान भाषा में कह लेते हैं। चौथे वाला क्या है यहाँ पर? सो द फोर्थ वन इट इज सेइंग हियर इज दैट इट इज इमरजेंसीज। पॉइंट बड़ा आसान है, मैं इसको लिख भी देता हूँ आपको। व्हाट इज द फोर्थ वन है? फोर्थ वन इज टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी। इमरजेंसी, अभी हम लोग एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन में ही है। अभी इमरजेंसी में आपने देखा है प्राइस का कोई ठीक ठाक कोई वैल्यूएशन हो रहा है, मतलब कोई भी कभी भी कैसा भी प्राइस मांग ले रहा है। सो दैट्स द सिंपल कंडीशन रिगार्डिंग द इमरजेंसीज। इमरजेंसी मतलब एक आपातकालीन व्यवस्था। उस समय दाम का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे कि इराक बोलिए, सीरिया बोलिए, कई सालों तक वहाँ पे इमरजेंसी लगा रहा है। तो वहाँ पर कभी चीज़ों को खाने मिलता था, नहीं मिलता, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या, कोई भी लॉ ठीक से काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड तो वो छोटा सा चीज़ है वहाँ पे। तो इमरजेंसी पे लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता है। मैं यहाँ पे छोटा सा करके पांचवा पॉइंट आता हूँ। पॉइंट इज नॉट ए वेरी बिग, दैट्स वाई आई एम यूजिंग ए वेरी स्मॉल प्लेस। फिफ्थ पॉइंट इट इज सेइंग इज दैट क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? पांचवा पॉइंट बोल रहा है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप है? सुनिए मेरे बात को ध्यान से। किसी किसी का मन में ख्याल आता है कि अगर चीजें महंगी होगी तभी वो चीजें अच्छी होगी। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे एक दो लोगों को जानता हूं। उनको ये लगता है कि अगर सामान महंगा है तो ऑब्वियस सा बात है कि सामान अच्छा होगा, उसमें कुछ तो बात होगा तभी तो वो महंगा है। अभी थोड़ी कोई सामान महंगा है। सो दैट्स अ सिंपल कंडीशन रिगार्डिंग द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। Now what is quality price relationship here? The quality price relationship says here that sometimes we have a conception that as the price of the commodity is high, the quality should be superior. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि as the price of the commodity should be high, the quality would be much superior. ये कॉन्सेप्ट, तो ऐसे कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड मेरा काम नहीं करता है। Last one, the sixth one, it is saying is that it is the change in fashion. अच्छा, आप लोगों ने पुराने दिनों का अमिताभ बच्चन का बेल बॉट्स पैंट देखा है? हाँ, देखा होगा पुराने फिल्मों में एक दो में। अभी अगर आपको कोई 100 रुपया में बेल बॉट्स दे दे, खरीद के पहन लोगे? अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों नहीं खरीदोगे भाई? ऑब्वियस सा बात है, आज के फैशन में वो है नहीं। आजकल कोई बेल बॉट्स पहन के नहीं घूमता है, बेवकूफ़ लगेंगे भाई। तो दैट्स अ सिंपल सिनारियो। अगर कोई चीज़ फैशन ही बदल गया है, सपोज द फैशन, द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, उस समय क्या लॉ ऑफ डिमांड, ना प्राइस ज़्यादा लो या कम लो, कोई नहीं खरीदने वाला है। सो दैट्स द सिंपल थिंग रिगार्डिंग द चेंज इन फैशन।
तो आप लोगों ने देखा लॉ ऑफ डिमांड के यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या क्या है। पहला मैंने बात किया गिवन गुड्स, द फर्स्ट वन आई टॉक अबाउट इज द गिवन गुड्स वन। सेकेंड वन स्नॉब अपील। थर्ड वन एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। फोर्थ इज द इमरजेंसी। फिफ्थ वन इट इज द क्वालिटी प्राइस रिलेशन, इसका एक और नाम हम लोग बोलते हैं दैट इज द वेवलन इफेक्ट, किसी किसी बुक में इस नाम से भी होता है। द वेवलन इफेक्ट और क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप बोथ आर सेम थिंग। एंड द सिक्स्थ वन इज द चेंज इन फैशन। तो मैंने इस वीडियो में हमने दो बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर अप किए। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन इट वाज रिगार्डिंग द व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दूसरा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। Signing off, hats off for this video. Thank you.